Alright, so now let's begin with the past papers. We'll do few of them and then we'll call it a day. So, let's see how many of you have revised the topic. Because if you have not revised, then you'll be unable to solve the past papers. ठीक है, so ठीक है भाई, काफी सारे बच्चे आ गए. Starting off with the first question. Um, Sucrose is a disaccharide. Figure 2.1 shows how sucrose is broken down in a reaction with hydrochloric acid. Acha ji, name the products A and B of the reaction shown in figure 2.1. Since we know that disaccharides is a combination of two monosaccharides, they are asking you that sucrose is now broken down, okay, and it is now broken into two different products. So they're asking you to label A and B. तो सुक्रोज किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? Miss glucose and fructose. Excellent. Glucose and fructose. Fruct- ठीक है जी. So you'll get 2 on 2 इधर. Excellent. ठीक है, ऐसे ही बस रिवाइज करते रहें ताकि हमारे पास्ट पेपर्स की अच्छी तैयारी हो जाए. बिकॉज इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल से आसान होते हैं. एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, देन यू विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह. चलिए जी, now let's move to the other question. Name the type of bond that is broken in the reaction shown in figure 2.1. So, कौन सा bond break हो रहा है ये? Let's see, ये bond था. अब ये कौन सा bond था? ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड बनता था? Glycosidic. ग्लाइकोसाइडिक. उस्मान जवाब दे रहे हैं ये, राइट? है Yes, ना? miss. तो उस्मान के जी. अलावा और किसने पढ़ाई की है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया यहाँ पे. एक्सलेंट. ठीक है जी. Now let's move on. State the type of reaction shown in figure 2.1. अगर रिकॉर्डिंग वाले बच्चों ने सुना है कि हमने रिएक्शंस पे बात की थी, there are two types of reaction, condensation and hydrolytic, and we talked about the difference between both of them, कि जब चीजें बनती हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, जब चीजें टूटती हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है. So, yeah, ठीक है. So let's see किसको पता है कौन सा रिएक्शन हुआ है, because since now they have given you this hint कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है. तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ब्रेकिंग वाला कौन से रिएक्शंस होते थे? आर दे कंडेंसेशन और हाइड्रोलिटिक? Hydrolysis. Hydrolysis या hydrolytic. Hydrolytic are those reactions where we add water in order to break the bond, while condensation is a process where we remove water to form a bond. ठीक है, हमने पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में देखा था that we removed water molecule in order to make peptide bond between two amino acids. Excellent. चले जी. So this is a slightly technical question because ये P3 का part भी हो सकता है, but we talked about food reactions या food test. So एक जो है वो एक चीज पूछी गई है and we extensively talked about the difference between reducing sugars and non-reducing sugars. So look at the question and just try to come up with anything. I'll appreciate जो भी आप लोग आंसर दोगे, but try करते हैं. मिस जब हम हीट करते हैं तो उसके बाद CuSO4 भी डालते हैं हम्म. कलर चेंज के लिए. इधर से उन्होंने ये मेंशन नहीं किया. नहीं, CuSO4 तो बेनेडिक्ट ही होता है ना, तो बेनेडिक्ट ही तो ब्लू होता है, उसके अंदर ही CuSO4 होता है. अलग से थोड़ी डालते हैं. CuSO4 अलग से नहीं होता, वो बेनेडिक्ट का ही पार्ट होता है. So they are saying that when Benedict solution is added to a sucrose solution and put into boiling water bath, no color is changed. Suggest या state why no color change is observed. इसका एक बहुत प्यारा आंसर आएगा. अब let's see कि वो क्या आंसर था. मे बी ये जो टेस्ट है ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए है और सुक्रोज Exactly. शुगर है. Exactly. यही इसका आंसर है that Benedict solution gives color change when you are testing this for reducing sugars.
while we said कि sucrose is a non-reducing sugars. All the disaccharides are reducing in nature except for sucrose. So Benedict का color change cannot be observed in a non-reducing sugar. And sucrose is a non-reducing sugar. तो इसके लिए एक दूसरा टेस्ट होता है जिसमें हम अलग से मजीद चीजें डालते हैं, उसको हम बेनेडिक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस कहते हैं. उसका यहाँ पे स्लाइड्स में भी है. So if you'll revise, you'll find it. The answer for this question is that sucrose कौन सा है? Sucrose is a non-reducing sugar. मैं पूरा नहीं लिख रही, I'm just writing the keywords. आप भी लिखना चाहो तो लिख लो. Don't take this as an option. लिख ही लें ताकि याद रहे. Sucrose is a non-reducing sugar, while Benedict test gives you color change in a reducing sugar. ठीक है, so this is a non-reducing sugar and it is not going to reduce. नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि रिड्यूस नहीं हो सकती आपके बेनेडिक्ट के अंदर. तो अच्छा, अभी ये बताएं कि दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, राइट? तो अभी जो मैंने बात लिखी है उससे तो मुझे सिर्फ 1 मार्क मिलेगा. इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सेकेंड मार्क, हाउ आई गेट सेकेंड मार्क? Miss, Benedict solution is used for reducing sugars ठीक है, to एक test. बात सही है, एक्सलेंट. आपको यहाँ पे मिल गया दूसरा मार्क. और भी क्या लिखूंगी? सुक्रोज के बारे में क्या लिखूंगी? दैट अभी बोला था दैट सुक्रोज विल नॉट रिड्यूस. बट किसको रिड्यूस करना है इसने? उस्मान की बात काफी हद तक ठीक है. उस्मान अभी वो लिख सकते हैं सुक्रोज विल नॉट रिड्यूस. किसको रिड्यूस करना था? विल नॉट रिड्यूस. यहाँ पे किसको रिड्यूस करेंगे हम? बेनेडिक्ट को. बेनेडिक्ट को. बेनेडिक्ट के अंदर क्या था? कॉपर 2+. Rose will not reduce copper 2+ to copper 1+. ये इसका कंप्लीट आंसर है. ठीक है. Are you guys aware of the fact that transition metals have variable oxidation states? Yes. ठीक है, तो कॉपर जो है वो आपका ट्रांजिशन मेटल होता है, राइट? सो कॉपर की 2 1 स्टेट एग्जिस्ट करती है एंड रिड्यूस किस में होता है? वो कॉपर 1 में होता है. ठीक है, तो कॉपर 1 में इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस, इसलिए इसका दिस इज द कंप्लीट आंसर. वैसे इफ यूल राइट वो वाली कहानी के बेनेडिक्ट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर पे एक्ट करती है तो यूल गेट 2 मार्क्स. बट ये टेक्निकल एस्पेक्ट है जो कि आपको लिखना चाहिए बिकॉज ये अच्छा पॉइंट एडिशन है आपके स्क्रिप्ट में. अगर थोड़ा सा बच्चों को केमिस्ट्री और अच्छी आती है तो उसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं. यानी अगर डिस्टिंक्शन वाला पेपर करना है तो यू कैन ऐड योर नॉलेज एज वेल. यानी ये हमारी नॉलेज है ना कि 2+ को 1+ में नहीं वो रिड्यूस कर सकता बिकॉज रिड्यूसिंग का और क्या मतलब होता है. दूसरी बात, अगर अच्छा और पेपर करना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तो व्हाट यू कैन राइट इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा केमिस्ट्री का आ गया. रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग लिटरली मतलब कि रिडॉक्स ही मैं यहाँ बात कर रही हूँ. सो इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. जो और मैं इसको अगर अपना इम्प्रूव वर्जन लिखूंगी या अपनी नॉलेज ऐड करूंगी तो ये भी बात मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, वैसे तो आई गेट 2 मार्क्स इतनी बातों पे जो मैंने अभी 2 बातें प्रीवियसली की हैं. बट इफ आई वांट टू गेट अच्छा वाला A* लीडिंग टू डिस्टिंक्शन तो मैं ये बातें लिखूंगी. और ये बातें जो होती हैं वो आपको हर अपने आंसर स्क्रिप्ट में जब हम लिखते हैं ना देन यू क्वालिफाई फॉर डिस्टिंक्शन. ठीक है, सो अच्छा लगेगा मुझे आप में से किसी की डिस्टिंक्शन आएगी तो इस तरीके की बातें नोट कर लें, टाइम टू टाइम बताती रहूंगी. अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, now at this point we are not going to attempt any question which will talk about phloem because ये वही questions हैं जो थोड़े से दूसरे topic साथ मिलकर आते हैं. So we'll be able to answer this question when we'll complete transport in plants. ठीक है, तो अभी परेशान नहीं होएगा उन चीजों के लिए जो मैंने अभी नहीं कराई हैं. अच्छा जी, let's see कि ये अच्छा वैसे तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन. लेट्स सी, देखते हैं. चलो जी. So you are now aware of the word triglycerides, right? कि इसमें 3 fatty acid chains होती हैं. You are now aware of phospholipids because हमने initially cell membrane पढ़ लिया था. ठीक है, so let's see this question. Figure 2.1 shows the structure of one type of phospholipid known as. अच्छा, अब देखिए ये नामों को देख के ना प्लीज कंफ्यूज ना होना बिकॉज बच्चे कहते हैं कि आपने ये चीज तो पढ़ाई नहीं. I'm not going to teach you everything. I'm not going to tell you about these खौफनाक words.
ये खौफनाक वर्ड्स दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर पेपर. आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए. फॉस्फोलिपिड पढ़ा है ना, अब उसकी टाइप से यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. या कोई भी ब्ला ब्ला खौफनाक सा वर्ड आ जाए तो डू नॉट गेट स्केयर्ड. ठीक है, वो देंगे और हम सारे वर्ड्स को कवर नहीं कर सकते. अब मैं इसकी आपको क्या बताऊं उसके बारे में, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि दिस इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड नाउ वी नो व्हाट फॉस्फोलिपिड इज. ठीक है, सो इन वर्ड से ऐसे स्ट्रक्चर से इंटिमिडेट होने के बजाय just try to understand the question, just try to figure out the keywords and then you'll be able to solve. Because ये सिर्फ बायोलॉजी में नहीं होगा, ये फिजिक्स में भी होगा and this is going to happen in chemistry as well. तो ये वर्ड से ये छोड़ दो, ये वर्ड जो भी कह रहा है, हमें अपना कॉन्सेप्ट पे रहना है विच इज फॉस्फोलिपिड. F1 एंड F2 आर फैटी एसिड के रेजिड्यूज. ये F1 F2 क्या है? फैटी एसिड वाली जो है वो हमारी चेन की रेजिड्यूज हैं, यानी जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होते हैं. अब नाउ दे आर सेइंग फॉस्फोलाइपेज. ऑब्वियसली एंजाइम अभी नहीं पढ़ा, पर एंजाइम के बारे में पता तो है ना कि वो कुछ किसी चीज को ब्रेक डाउन करता है. उन्होंने हमें बता भी दिया कि इट इज एन एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन फॉस्फोलिपिड्स. दिस एंजाइम इज फाउंड इन द venom of some insects such as bees. Bee venom can destroy red blood cells, a condition known as hemolysis. नहीं पता हमें hemolysis क्या है, एक्सेप्ट कि हमें यहाँ पे इन्होंने सिर्फ थोड़ी बहुत कहानी बता दी है. Suggest how bee venom destroys red blood cells. अब देखो क्वेश्चन की टेक्निकलिटी देखो, आपको इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है. अब ऐसी हमने बी वेनम भी नहीं पढ़ा, हमने हीमोलाइसिस भी नहीं पढ़ा, बट इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करेंगे. अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं. कौन से को कर लिया इन्होंने? आपके एंजाइम्स की नॉलेज को टेस्ट कर लिया इन्होंने, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया इसलिए आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन विद यू गाइस. हमें एंजाइम्स पता है, हमें फॉस्फोलिपिड पता है, हीमोलाइसिस का उन्होंने हमें खुद बता दिया. अब बताएं that how are you going to answer this question. 2 marks लिए, तो 2 marks means 2 pointers डालने. बी वेनम ने रेड ब्लड सेल्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया? बी वेनम कह रहे हैं कि देखें इट कैन डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स, और ये कंडीशन हीमोलाइसिस. उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज का, वो फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक कर सकता है. फॉस्फोलिपिड क्या चीज थी आपकी? यू नॉट स्पीक देन आई थिंक कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है. मिस रेड ब्लड सेल्स फॉस्फोलिपिड से बने, उनके मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बने, तो बी वेनम उसको जाके टेयर अपार्ट कर सकता है और इस तरीके रेड हाँ ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एग्जैक्टली exactly. आपकी बात कंप्लीट हो गई. सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, यानी आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसको डैमेज करा. किसने डैमेज करा? फॉस्फोलाइपेज ने. कैसे डैमेज करा? उसको जो है वो उसको ब्रेक डाउन कर दिया. उससे क्या हुआ? आपका सेल बर्स्ट हुआ या रप्चर हुआ या उसमें लाइसिस हो गया. और सेल कंटेंट, यानी जब सेल रप्चर होगा ऑब्वियसली तो उसमें से सारा सेल कंटेंट बाहर आ जाएगा, राइट? ये सारी कहानी आपने लिखनी थी. क्या कहानी लिखोगे? दैट योर सेल सरफेस मेम्ब्रेन, यू विल नॉट राइट सेल मेम्ब्रेन, राइट? बिकॉज बता दिया था ना, आप 2 साल के लिए सेल सरफेस मेम्ब्रेन बोलोगे या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलोगे. तो अच्छा अच्छा वर्ड इज सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जिसको आपके बी वेनम के, यू कैन एक्सक्यूज माई राइटिंग. अब तो मैं डॉक्टर बन रही हूँ, अब तो मैं कुछ भी राइटिंग लिख सकती हूँ. सेल सरफेस मेम्ब्रेन को किसने रप्चर किया? फॉस्फोलाइपेज ने किया, उसने उसको ब्रेक डाउन करवाया. अच्छा, अब मैं इसमें आपको कीवर्ड्स भी हाईलाइट करके दूंगी कि कौन से वर्ड जो है वो आपको मार्क्स दिलवाएंगे. ठीक है, 1 मिनट कीजिएगा बस मुझे. फॉस्फोलाइपेज ने इसके ऊपर एक्ट किया, किस पे? सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे. फॉस्फोलाइपेज ने एक्ट किया और इसके रिजल्ट में अब जो आपका कीवर्ड है दैट योर सेल गॉट रप्चर्ड, या सेल में लाइसिस का प्रोसेस हो गया. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. रप्चर्ड लिखोगे या ब्रोक डाउन भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. रप्चर या फिर लाइसिस का वर्ड. लाइसिस ये देख लें, ये बिकॉज यू हैव टू यूज दिस वर्ड एज वेल. लाइसिस हो गया. लाइसिस से क्या हुआ? सेल कंटेंट बाहर आ गया. सो यहाँ पर आपके अब 2 कीवर्ड्स कंप्लीट हुए हैं. एंड देन यू विल गेट 2 on 2. सेल कंटेंट क्या हो जाएगा? लीक आउट हो जाएगा, बिकॉज सेल की मेम्ब्रेन ही फट गई है. तो जो सेल के अंदर कंटेंट था इट विल कम आउट. सेल कंटेंट विल लीक.
लीक इज अ गुड वर्ड बिकॉज लीक क्या बता रहा है, एडवर्सिटी बता रहा है कि लाइसेंस होने के चक्कर में लीक हुआ है। कम आउट तो एक अच्छा वर्ड बता रही हूँ ना मैं, कम आउट ऐसे लग रहा है बहुत तमीज से कोई चीज कम आउट, ऐसे तमीज से तो कोई चीज कम आउट नहीं होगी अगर ये कंडीशन हुई है दैट योर सेल गॉट रप्चर्ड। दिस इज अ सीरियस कंडीशन, दिस लुक्स टू बी अ सीरियस कंडीशन, वी आर नॉट श्योर कि है क्या, पर एक कंडीशन का बता रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडीशंस आर एडवर्स इन नेचर। तो एडवर्सिटी में क्या हुआ, दैट योर सेल गॉट रप्चर्ड, 1 मार्क। Number 2, cell content but leak, and you'll get 2 on 2. ठीक है? So this is how you're going to attempt your questions. अभी I know this is a very initial stage और keywords को अभी नहीं आएगा समझ में कि हमें कौन सा word डालना है, but with practice you will be able to understand कि हम कैसे words जो हैं वो add करते हैं। ठीक है? अच्छा जी। So अब जो है वो टाइम हमारा ऊपर हो रहा है। What we can do is आप लोग जो है ना just do one thing, just revise my slides and again कल हम पास पेपर्स करते हैं और एंजाइम शुरू करते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट हाफ में एंजाइम, इसमें फर्स्ट हाफ में विल डू द पास पेपर्स एंड देन इन द नेक्स्ट हाफ विल डू एंजाइम्स। ठीक है? सो आई कॉल इट अ डे नाउ, and if you have any question so you can stay in the meeting, and if you don't have any question then you can leave the meeting, and jazakallah khair for joining.